So, Varun, you are preparing for BPSC lecturer in computer science, and you are Ye- prepared with the subject of databases. So, Yes, ma'am. shall we start your interview? Yes, ma'am. Okay. So, what is a database? Our database is a collection of similar type of records. You want to add anything to this? Mm, it's just a collection of similar kinds of records. Anything like what? Okay. What is the basic difference between information and data? Mm, Data, yeah, data that is stored somewhere, and we can say information. Yeah, we can say that data is an information that is stored. Do you have any idea about data abstraction and independence? No idea. Idea. Okay. So, have you studied about SQL queries? Yes, ma'am. So, suppose you have one employee table. Okay, you can Okay. write it somewhere. One employee table is there, which is Yes. having one key as primary key is employee ID, then employee name, and then department. Three things are there. Okay. Last thing is salary. Four columns are there in the table. Okay. Yes, ma'am. Employee ID, employee name, department name, and salary. Okay. Okay, so you have to write a query to fetch the number of employees working in accounts department and salary is greater than 20,000. Uh, you know, we have to fetch the number of. You have to fetch the number of employees Okay, number of employees. working in Uh, accounts department working in accounts whose salary is. and salary is greater than 20,000. Select. We have to fetch the name of employee or employee ID only. You have to find the number of employees. Okay, number of employees. Then select employees Can you from show employee that? table. Can you show it? Okay.
Okay, 1 minute, मैम Varun. I can see that later on. You can see one question on the screen. Can you see one diagram? the diagram is not full. One board will be there, right? Yes, employee works for. And department. Okay, can you recognize this diagram? What is it? You don't have to change it, okay? Okay, it's. Uh, it is I'm visible, able right? to see. Yeah, ma'am. It's a fully Huh? uh, employee works for department. Yeah. There is between employee and work there is the age is doubled. It is fully dependent. 1 minute. Then What is this diagram called actually? this is ER diagram. Yeah, correct. After that, can you tell that what is the participation and cardinality in this diagram of employee Uh, and department? Ma'am, the diagram is partially visible, not whole. Okay, 1 minute. Yeah, now it's This is a visible. very small diagram. Okay. Yeah, between there it is many to one participation. Many to one participation. Uh, Yes, ma'am. and cardinality? Cardinality, there is only two, employee and department. Number of Okay. number of records is called cardinality. Number of entities we can also say. Okay. What is the difference between delete and truncate? Ma'am, delete is a DML command that deletes a row from a table, and truncate is a DDL command that deletes the whole record from a table. It doesn't delete the table. It only deletes that is written under the table, in the table. Okay, Varun. So I'm done with the questions. Let's come to the discussion. Okay. तो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि डेटाबेसेस क्या होता है? तो is this a collection of logically it is a collection of records basically, that was correct, but it contains interrelated data. Okay, Okay. ma'am. So Internet. that thing was missing, and after that I asked what is the difference between information and data. तो उन दोनों Yes. में बेसिकली ये डिफरेंस होता है कि इंफॉर्मेशन में कुछ लॉजिक होता है कि मतलब डेटा के बीच में कुछ लॉजिक होता है, उसमें इंफॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे कि डेटा है कि कुछ भी ABCD ऐसे पड़ा हुआ है, और मैं अगर बाद में बोल दूं कि A एक्चुअली B का एड्रेस है, बी है किसी पर्सन का नाम और ए उसका एड्रेस है, तो इसको इंफॉर्मेशन कहेंगे कि डेटा के बीच में हमने कुछ रिलेशन सेट कर दी। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है इंफॉर्मेशन और डेटा में। डेटा एब्स्ट्रैक्शन और इंडिपेंडेंस का आपको बिल्कुल आइडिया नहीं था। आपने आर्किटेक्चर नहीं पढ़ा, 3 tier आर्किटेक्चर जो होता है, Yes, ma'am. जैसे 3D कि architecture लॉजिकल लेवल, फिजिकल लेवल, है ना? is a view level. Yes, ma'am. हाँ, व्यू लेवल, तो इसी को ही डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोलता है। Okay, ma'am. और उसके बाद इंडिपेंडेंस होता है कि लॉजिकल लेवल इंडिपेंडेंस होता है, फिजिकल लेवल इंडिपेंडेंस होता है। Okay, पढ़ा ma'am. होगा, हाँ मैम, मैंने पढ़ा है वो, ये पॉइंट मिस नाम कर से गया आपको। मीन्स। हाँ, जैसे डेटा लेयर्स मैंने पढ़ा है, फिजिकल लेयर, व्यू लेयर और यूजर लेयर। हाँ, तो उसमें वही था। उसके बाद मैंने पूछा था डिलीट एंड ट्रंकेट, तो वो आपने सही बताया। उसके बाद ये ईआर डायग्राम पे आते हैं। ठीक है, तो ईआर डायग्राम में मैंने पूछा था पार्टिसिपेशन एंड कार्डिनलिटी। तो इसमें
पार्टिसिपेशन में आपने कार्डिनलिटी बता दिया था। पार्टिसिपेशन होता है या तो वो टोटल पार्टिसिपेशन होगा या फिर वो पार्शियल पार्टिसिपेशन होगा। तो यहाँ पे डबल लाइन है, इसलिए वो टोटल पार्टिसिपेशन है एम्प्लॉय, और डिपार्टमेंट वाली साइड में वो पार्शियल पार्टिसिपेशन है। यस अच्छा, मैम, ये इसको मुझे पता है। मीनिंग समझ आ रहा है आपको इस डायग्राम का कि कहना क्या चाह रहा है? इसका मीनिंग ये है मैम कि एक डिपार्टमेंट में एक से अधिक एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं। हाँ, और हर एम्प्लॉय किसी ना किसी डिपार्टमेंट में है, लेकिन हर हाँ, डिपार्टमेंट किसी ना किसी एम्प्लॉय, मतलब हर एम्प्लॉय से कनेक्टेड है ये जरूरी नहीं है। ये पर जरूरी एक नहीं है। एम्प्लॉय किसी ना किसी एक डिपार्टमेंट किस से कनेक्टेड है, मतलब टोटल पार्टिसिपेशन है, सारे एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट से किसी ना कनेक्टेड होंगे। हाँ, किसी ना किसी डिपार्टमेंट में है। हाँ, बट डिपार्टमेंट्स हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा भी हो, सारे एम्प्लॉय से कनेक्टेड हाँ, ना हो। ठीक है। यस मैम। तो यस मैम। इसका ये मतलब होता है, तो फिर ये टोटल पार्टिसिपेशन है एम्प्लॉय वाली साइड में और पार्शियल पार्टिसिपेशन है डिपार्टमेंट वाली साइड में। ठीक है। फिर मैंने पूछा यस मैम। कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी इज 1:n। कार्डिनलिटी बेसिकली क्या है कि एम्प्लॉय वाली साइड में 1 है, मतलब वो एम्प्लॉय जो है, हर एक एक एम्प्लॉय हर एक डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है, मतलब हर एक से नहीं बट हाँ किसी ना किसी डिपार्टमेंट से वो जरूर कनेक्टेड होगा। और डिपार्टमेंट वाली साइड एन होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट क्या है, एन हो सकते हैं, और पॉसिबल है कि एक एम्प्लॉय डिपार्टमेंट वाली साइड एन इसलिए होगा बिकॉज, आप बता सकते हो क्यों होगा? आपने शायद 1:n बताया था ना मैंने पार्टिसिपेशन। मैनी टू वन बताया था। मैनी टू वन बताया था। ओके, मैनी टू यस वन मैम। ही बोलते हैं उसे, बट जब लिखने में आता है तो एम्प्लॉय वाली हाँ, साइड इसको वन बोलते हैं। वन बोलते हैं, उधर ओके। मैनी बोलते हाँ, हैं। यस मैम। तो वही होता है। तो मतलब एक एम्प्लॉय क्या है, मैनी डिपार्टमेंट से कनेक्शन में हो सकता है। यस मैम। आपको समझ आया? थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया जिस तरह से मैंने बताया, बट मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आपको समझ आया? नहीं तो मैं फिर दूसरी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ। आपने बोला मैम कि जैसे इम्प्लॉयज हैं वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में होंगे। हम्म। ठीक है। लेकिन ऐसा हाँ। जरूरी नहीं है कि बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इन एम्प्लॉयज से कनेक्टेड होगा। हाँ, ठीक है। और फिर क्वेरी पे आते हैं, इसको मैं बंद कर देती हूँ, मुझे दिखेगी नहीं आपकी स्क्रीन। हाँ, अब आप क्वेरी दिखा दीजिए कि आपने क्या लिखी थी। आपकी स्क्रीन ब्लर हो रही है। हाँ। सेलेक्ट सिलेक्ट काउंट एम्प्लॉय। count employee from employee table where department equal to accounts and salary is greater than 20,000. आपका लॉजिक ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि आपने सिंटेक्स नहीं फॉलो किया है। जैसे कि ये सिंटेक्स में 20 के नहीं चलेगा, 20,000 आपको नंबर लिखना हाँ। पड़ेगा ना। हाँ, वो मैं लिख दिया था। वो ठीक है, मैं नहीं नहीं नहीं, लिख मेरे नहीं से दिया, ऐसे नहीं होता। ओके। ठीक है। तो और एम्प्लॉय टेबल ठीक है, मतलब इसके पहले आपको एक स्कीमा सा लिख लेना चाहिए था टेबल का, बेटर होता। बट हाँ, ये सही लिखा है आपने, सही है क्वेरी। बट हाँ, जैसे कि स्कीमा लिख लेते तो क्लियर हो जाता, जैसे कि स्कीमा मैंने बोला था ना, एम्प्लॉय आईडी है, फिर एम्प्लॉय नेम है, तो एम्प्लॉय उसी में से की आना एम्प्लॉय चाहिए आईडी था। था, नेम, हाँ, तो आपकी ये सारे। स्कीमा में कुछ सिर्फ एम्प्लॉय तो आ ही नहीं रहा है जो आपने काउंट किया है ना। सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी यहाँ लिखना चाहिए। सिंटेक्स का जैसे बहुत ध्यान एम्प्लॉय रखना है, क्योंकि एसक्यूएल में मेन सिंटेक्स ही होता है, लॉजिक तो आपका ठीक है, बाकी सिंटेक्स का भी बहुत ध्यान रखना होगा। ठीक है। बट ओके। क्वेरी आपने सही लिख दिया, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो ठीक है वरुण, आपको मतलब रिवाइज करने की अभी जरूरत है, मतलब इतना खराब नहीं है, बट ये आप जो है रिकॉल नहीं कर पा रहे हो टाइम पे, बस यही प्रॉब्लम है। तो आप रिवाइज करोगे एक दो बार तो वो चीज आ जाएगी, बट ये कि आपका पढ़ा हुआ है सब्जेक्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, आपको कुछ ओके मैम। डाउट पूछना है? नहीं मैम, ये मीन्स थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल देखना तो कैसा है ये बताया जाए। जैसे इंटरव्यू में मेन तो कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं। ओके, कॉन्फिडेंस लेवल तो तब पता चलेगा जब आप बोलोगे, और मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप गलत आंसर कॉन्फिडेंस के साथ दो, ठीक है? कॉन्फिडेंस में भी सही आंसर देना है, बट थोड़ा और कॉन्फिडेंस आप ला सकते हो। ओके मैम। ठीक है। जैसे कि मैंने जब क्वेरी पूछी थी तो आप एक्सप्लेन कर सकते थे कि क्वेरी बोल क्या रही है, उसके बाद आप लिखना स्टार्ट, मतलब कोई भी ऐसे रिटन क्वेश्चन आए ना, तो पहले आप बता दो कि मैं करने क्या वाला हूँ। कि ये जैसे कि मैंने पूछा, क्या पूछा था, क्वेरी थी, ठीक है? तो उसमें आप बोल सकते हो कि इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमें पूछना है, साथ में एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें से निकालना है, और कंडीशंस हमारे पास दो हैं जिसमें सैलरी और डिपार्टमेंट हमें कंपेयर करना है। उसके बाद आप क्वेरी लिखना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आप यस मैम। इस तरह से बोल दो कि आप करने क्या वाले हो, तो फिर क्या होगा ना, इंटरव्यू का पता चलेगा। नहीं तो ये कि वो वेट कर रहे हैं कि आप ट्राई कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो। ऐसे ही डेटाबेस और एल्गोरिथम्स अगर आपने अपने सब्जेक्ट में लिया होगा, फेवरेट में, तो आप उसमें यस भी यही मैम। करिएगा कि आपको कोई एल्गोरिथम लिखनी है तो आप एक बार लॉजिक बता दीजिए कि आप लिखने क्या वाले हो, उसके बाद स्टार्ट ओके करिए मैम। लिखना। तो इससे क्या होता है, इंटरव्यू को लगता है कि अच्छा आपको आता है। और हो सकता है कि आप लिखने में कुछ गलत भी करोगे ना, तो भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे, कि मतलब उससे लॉजिक आता है, बट हो सकता है लिखने में या नर्वसनेस की वजह से लिखने में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, यस मैम। इस चीज का आप ध्यान रखिए। और ये चीज जो है थोड़ा कॉन्फिडेंस भी दिखाती है। इंटरव्यू का मतलब ही होता है कि इंटरक्शन, और वो इंटरक्शन में आप लेक्चरर बनने जा रहे हो, तो वो चेक ही यही करेंगे कि आपको स्टूडेंट्स को पढ़ाना आता है या नहीं। तो आप इंटरव्यूअर को एक स्टूडेंट समझ के ही क्वेश्चंस के आंसर करिए। ये मत सोचिए कि वो मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे बस आंसर करना है, मुझे मार्क्स आने हैं, मुझे जॉब चाहिए। ये मत सोचिएगा। आप जितना अच्छे से यस मैम। एक्सप्लेन कर सकते हो उतना ट्राई करिएगा। ओके मैम। ओके। ओके।